नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामगियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव हर और हर महादेव। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। In Chinese, ni hao. In Japanese, konnichiwa. Pradeep ji, you want to address the... Abar Yako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. Isn't that wonderful? Fantastic. Absolutely A wonderful. lot of viewers who are Swahili speaking. Yes. Viewers of Nation Now. Absolutely. So Pradeep ji, the news today which really interested me was that our old friend Mr. Sameer Wankhede might be joining the Shiv Sena. Yes. Eknath Shinde might be. I mean, He's not denied it. He hasn't denied it, but there's no official confirmation as yet from the Shinde Sena. I hope we get no official official confirmation. Probably he wants to fight because when we did talk to him, he said, yes, thanks for your wishes. And Yes. we blessed him for the new role that he's going to take That's take right. on. And the new role, when we mentioned, he said no, he never said no, that he's not going for it. That's right. Isn't that? But that's great. Really and truly speaking. So finally, the rehabilitation of Mr. Sameer Wankhede will be complete. Isn't that wonderful? Now, the other thing is, of course, as far as in Maharashtra, for instance, I think the NDA is effectively being led by Mr. Eknath Shinde. Mr. Eknath Shinde is the powerhouse that is actually leading the entire NDA. Because आप बाकी सबको देखिए, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा एनालिसिस है कि एकनाथ शिंदे साहब की वजह से आज की तारीख में एनडीए में एक नया जोश आया है। हरियाणा की वजह से तो ऑफकोर्स आया ही है क्योंकि आप हरियाणा में जीत गए हैं, लेकिन जिस प्रकार एकनाथ शिंदे साहब की बॉडी लैंग्वेज है, जिस प्रकार वो काम कर रहे हैं, जिस प्रकार वो एक एक चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, मुझको ऐसा लग रहा है कि अगर आज एनडीए में कोई जोश आया है तो वो उसको भर भर के, मतलब ही इज नेवर अलाउड एनी डिप्रेशन टू सीप in the NDA. He's fully, I think that's the man right there on your screen. Fully content, absolutely content. He's very happy, the very fact that he's chief minister. He never leaves an opportunity, not even a single moment to say that, you know, he's not been here, he's not fulfilled his duties as chief minister. 24/7, 365 days, Eknath Shinde is on the go and positively on the go, providing solutions for everything. Anybody has a problem, he's always there. Any farmer has a problem, he's always there. Industrialist having a problem, he is there. Infrastructural problem, he is there. Landslide is there, mudslide is there, heavy rains is there, akal, dushkal, everywhere he is there. Absolutely, and he's working well. आगे जो हो सो हो, मतलब लड़की बहन योजना, उसके अलावा बाकी सारी योजनाएं जो सामने आई हैं, and he's pushing them very aggressively. जो आक्रामक एक नेतृत्व में जो आक्रामकता देखने को मिलनी चाहिए वो आज की तारीख में एकनाथ शिंदे में देखने को मिल रही है. So at the moment with us we have three very important guests indeed. We have our old friend Shivrai Kulkarni Saab of the BJP, Asif Faruqi Saab of the Congress, and Sushil Vyas ji of the Shiv Sena, Eknath Shinde. Gentlemen, thank you very much for joining us. बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ हैं. कुलकर्णी साहब नमस्कार. नमस्कार. आसिफ फारूकी साहब, मुझे लगता है कि आप शायद गाड़ी में हैं. हाँ सर, मैं ट्रैफिक में जरा फंस गया. जी कोई बात नहीं. रियली सॉरी सर. बट वेलकम. और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर. व्यास जी नमस्कार. नमस्कार. तो सबसे पहले आसिफ फारूकी साहब, because we might lose him because he's in the car, so you never know when the network just might go away. So आसिफ फारूकी साहब, आप ये बताएंगे सर, हरियाणा की डिसअपॉइंटमेंट के बाद क्या कांग्रेस जो है वो अपने आप को दोबारा एकत्रित कर पाएगी और उसी उत्साह के साथ लड़ पाएगी महाराष्ट्र में? बिल्कुल सर, ये हरियाणा की जो पोजीशन है वो अलग थी. वहाँ कुछ हमारे इंटरनल इनफाइटिंग भी थी और दूसरे जिस तरीके से वहाँ पे कंडक्ट किया है इलेक्शन के सारे मामलात, उस पर हम लोग को कल भी शक था और आज भी शक है. लेकिन महाराष्ट्र की बात अलग है. महाराष्ट्र में हमारे साथ में दो बहुत ही दिग्गज पार्टियां साथ दे रही हैं. कम से कम दो दिग्गज पार्टियां हैं, बाकी और भी हैं.
समाजवादी भी और छोटी बड़ी पार्टियां हैं, तो वो एमवीए के शरद पवार जी हैं और उद्धव सेना जो है वो बहुत ही मजबूत है, और हम लोग के मॉरल में कोई कमी नहीं आई है। तो मुझको नहीं लगता है कि उसका कोई ख़राब असर हम लोगों के ऊपर महाराष्ट्र में होगा, और हम लोग बहुत ही अपबीट हैं सर। तो बल्कि ये समझ लीजिए कि उसकी वजह से हम लोग ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं, तो कल से अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद है सर। आसिफ जी, तुष्टिकरण की राजनीति जो चल रहा है कांग्रेस और इंडिया अलायंस के, आज फिर देखने को मिला जब आलोचना करने लगे आप। यूपी में जो एनकाउंटर हुआ, बदलापुर में एनकाउंटर हुआ, अब यूपी में जो वहां पर जो कम्युनल टेंशन था उसी में आज तो मगर मारा नहीं गया पर बट ये बुलडोजर और एनकाउंटर अगर नहीं होगा तो कैसे क्राइम को कंट्रोल करेंगे आप लोग? कांग्रेस, स्पेशली कांग्रेस और इंडिया अलायंस पे आरोप है कि तुष्टिकरण की राजनीति करते हो। सर मुझको बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि आप जैसा जर्नलिस्ट इस किस्म का सवाल कर रहा है कि बुलडोजर और गोली से मार के आप इस तरीके से फैसला कर देना चाहते हैं और जजमेंट करना चाहते हैं। इसका मतलब आपको भी संविधान में भरोसा नहीं है। आपने जो इस किस्म का क्वेश्चन पूछा है, हम तो ये चाहते हैं कि सर संविधान में सारे प्रोविजंस हैं उसको आप फॉलो कीजिए, और उसके ज़रिए से जो भी उसका फैसला होता है कोर्ट कचहरी से आप उसके कीजिए। आप ये बुलडोजर ला के किसी का घर मर्जी से तोड़ देंगे, आपने किसी को पता कर लिया कि भाई ये, तो क्या उसको आप उसको बात कहने का या उसको कोई मौका नहीं देंगे कि वो अपनी बातें कोर्ट के सामने पेश कर सके? और वो गलत है तो उसको गलत तरीके से आप उसको गोली मार दीजिए या बुलडोजर से उसका घर गिरा दीजिए, ऐसा मत कीजिए। हमारे पास बहुत ही अच्छा और बहुत ही जामे यानी फुल हमारे पास कानून है हर चीज़ के लिए, उससे फैसले कीजिए और उसके ऊपर अमल कीजिए। सर आप किस तरीके से आप करना चाहते हैं? मुझको तो बड़ा ताज्जुब है कि आप सवाल ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आज सवाल इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, पूरे चर्चा है पूरे देश में इसका। आज ये हमारा चर्चा नहीं है, चर्चा पॉलिटिकल पार्टीज के, बिकॉज आपके इंडिया अलायंस के पार्टनर समाजवादी पार्टी ने आरोप किया है कि ये पॉलिटिक्स है। हाँ नहीं, वो हो सकती है सर, पॉलिटिक्स हो सकती है कि जिस तरीके से ये बुलडोजर ले जाके किसी का घर गिरा देते हैं, फिर उससे एक हंगामा खड़ा होता है, फिर उसके अंदर तो वो सब पॉलिटिक्स। लेकिन कांग्रेस पार्टी बजाते इन चीज़ों से दूर रहना चाहती है, इसीलिए हमारे नेता ने हमेशा संविधान को प्रेफरेंस दिया है और उसकी कॉपी लेके हम लोग पहले उसके ऊपर नमस्कार करते लेके घूम रहे हैं कि संविधान खतरे में जो बात आई है वो इसीलिए आई है कि हमारी सत्ता हुकूमतें वो इलीगल तरीके से अपने मफाद के लिए चीज़ों को डील करना चाहती है, जिससे हम लोग को बहुत इख्तलाफ है। राइट, लेट्स गो अक्रॉस टू शिवराय कुलकर्णी साहब। शिवराय कुलकर्णी साहब, इफेक्टिवली कांग्रेस की तरफ से, जैसा ये भी आसिफ फारूकी साहब बोल रहे थे कि देश कानून से बनता है, इंडिया इज अ नेशन ऑफ लॉज, तो क्या आप एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्शन में बिलीव करती है बीजेपी क्या सर, जो कि गैर संवैधानिक हो? सर राजीव जी अभी फारूकी साहब बोल रहे थे कि बुलडोजर चलाना संविधान के विरोध में है। बुलडोजर चलाना संविधान के विरोध में है, लेकिन गैंगरेप करना, वहां पर दंगा करना, वहां लूटमार करना, धार्मिक भावना भड़काकर वहां पर और कोई जबरन कृत्य करना, बड़ी बड़ी चोरियां करना, ये सब संविधान सम्मत है क्या? अरे भाई साहब, बुलडोजर जो चलता है, जो गुनहगार है, जिसके ऊपर गंभीर चार्जेस है, जो क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल जहां पर अपना घर अगर खुद की जगह विकत लेकर लीगल रूप से विकत लेकर अगर बनवाता है, तो कौन सा सरकार उस पर बुलडोजर चला सकता है? बुलडोजर उसी के ऊपर चलता है जिसने फिरौती मांग कर अपना घर बनवाया हो, जिसने अवैध रूप से एनक्रोचमेंट किया हो, जिसने दहशत और बंदूक के आधार पर अपना मकान बनवाया हो, और जो समाज को हानि पहुंचाता है, गैंगरेप करता है, दंगा करता है, पत्थरबाजी करता है, देशद्रोही कृत्य करता है, उसके ही घर पर बुलडोजर चलता है। किसी निर्दोष आदमी के घर पर बुलडोजर नहीं चलता। तो ये कहां बता रहे हो कि बुलडोजर चलाना संविधान में नहीं है?
आप मुझे बताइए कि जहां इंक्रोचमेंट होता है तो इंक्रोचमेंट कैसा हटता है? बुलडोजर लगा के इंक्रोचमेंट हटता है, इंक्रोचमेंट वैसा नहीं हटता। भाई हम लोग 100 साल हम लोगों ने लड़े, लेकिन आपने बाबरी मस्जिद की जगह पे मंदिर कैसे बना लिया? कोई गुंडागर्दी तो नहीं करके बनाया ना आपने। सब कुछ करने के बाद आखिर में जब कोर्ट ने आपको फैसला किया और दोनों कौमों ने मान लिया, गलत किया सही किया सेकेंडरी था, लेकिन हमने संविधान के जरिए कोर्ट ने एक फैसला दिया कि भाई इसको इस तरीके से होना चाहिए, और हमने माना उस बातों को, आपने भी माना, हम उसमें इनकार नहीं है। इसी तरीके से अगर वो किसी ने इलीगल घर बनाया है या कोई जबरन कोई काम किया है, खुदा ना खासा आपने इतना घिनौना बात कही कि रेप इस किस्म के कांड किए हैं, तो उसका संविधान में तरीका है सर। आप किसी को गोली नहीं मार सकते, आप अपने हाथ में, ये सब चार्जेस है, ये आप उसको फैसला कोर्ट कचहरी के जरिए कानून के जरिए करेंगे। आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि मैं जाके किसी को गोली मार दूं या किसी का घर, मैंने कहा कि भाई इसने भले इलीगल बनाया होगा सर, लेकिन कोर्ट कचहरी एक सिस्टम है, उसके तहत आप काम कीजिए सर, लेकिन आप इस तरीके से नहीं कर सकते। मुझको अफसोस हो रहा है कि आप भी उस पे जा रहे हैं और उसी तरीके से सोच रहे हैं सर। तो आसिफ फारूकी साहब, एक सेकंड, शिवराज कुलकर्णी साहब, आसिफ फारूकी साहब जो कहना चाह रहे हैं कि बुलडोजर चलाइए, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद चलाइए ना, उसके पहले क्यों चला रहे हैं? ये कुलकर्णी साहब बोलिए। ऐसा है कि किसी निर्दोष व्यक्ति का घर पर बुलडोजर नहीं चला। क्या पूरे उत्तर प्रदेश में या जहां जहां भी बुलडोजर चला होगा वहां पर क्या बाकी एनक्रोचमेंट नहीं है क्या? अरे जो क्रिमिनल है, जो तो सरकार की ही जगह हड़प कर, लोगों की जगह हड़प कर घर बनवा कर रहता है और उस घर का सहारा लेकर समाज को क्षति पहुंचाता है, ऐसे क्रिमिनल के बारे में आपको इतना प्रेम क्यों है? मुझे आप बताइए ना कि किसी अच्छे आदमी का घर तोड़ा है, कोई उर्दू स्कूल का शिक्षक है, टीचर है, उसका घर तोड़ा है, कोई किसी मौलवी का घर तोड़ा, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। जो क्रिमिनल है, जो गैंग रेप में, अब रही एनकाउंटर की बात, तो क्या पुलिस सामने आकर गोली मार रही क्या? ये क्रिमिनल लोग भागने की जब कोशिश करते हैं तब गोली मारी जाती है। अब क्रिमिनल अगर खुद भागने की कोशिश करेगा, जैसे बदलापुर में हुआ था कि बदलापुर का क्रिमिनल जो गैंग रेप का वहां का जो विक्टिम था, आरोपी था, वो आरोपी अगर पुलिस की ही गन छीन कर पुलिस के ऊपर गोली चलाता है तो क्या पुलिस अपनी जान दे देगी? और बाद में संविधान देखेगा, बाद में कोर्ट देखेगा कि उसका जाओ था कि नहीं जाओ। सर अगर पुलिस को गोली चलानी पड़ेगी। सर आपने अभी बदलापुर और इस किस्म के वो बात कही है, हाथ में हथकड़ी लगे हुए को आपने गोली मार दी। उस दिन बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली चली, 2 निहत्थे भाग रहे थे हाथ में बंदूक लेके, उसको पकड़ लिया गया। आप कैसी बातें कर रहे हैं? दोनों बातों में कितना अंतर है सर? एक हथकड़ी लगे हुए को बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोलियां चलाई और उनको पुलिस ने अरेस्ट किया, और अगर वो कल पुलिस पर हमला करते हैं, अगर वो पुलिस पर गन चलाते हैं तो उनका भी एनकाउंटर पुलिस ने करना ही चाहिए। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, कारण है। देखिए बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है, उसका खेद है, हमें नहीं होना चाहिए। लेकिन जिन्होंने बाबा सिद्दीकी जी को मारा, वो आरोपी अगर कल पुलिस के ऊपर गोली चलाती है तो पुलिस ने उनके ऊपर गोली चलानी चाहिए। लेकिन मैं तारीफ कर रहा हूँ पुलिस की कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, दो मारने वालों को गिरफ्तार किया सर, जो कि हथकड़ी में नहीं थे। लेकिन आप बदलापुर वाले की बात करते हैं तो वो हथकड़ी में थे, उसको मालूम है कि ये क्रिमिनल है और उसको पुलिस वाले लेके जा रहे हैं, और वो हथकड़ी के बावजूद वो हमला करता है और उसको पुलिस वाले मार देते हैं और ये बोलते हैं कि ये हावी हो गया था, जबकि 4 पुलिस वाले थे। ये सर हमारे दिमाग जहन में तो नहीं बैठती है सर। साहब और शिवराज कुलकर्णी साहब नहीं बैठेगी। कुलकर्णी साहब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि नाउ all demolitions will be done only with their permission. And the guidelines are coming. I want to ask कुलकर्णी साहब, आपको पूछना चाहता हूं,
मोहन भागवत जी वापस हिंदुत्व की तरफ कहा कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स हिंदुत्व, एंड हर मंच पर वो हिंदुत्व वाली चीज है कि वी हैव टू डू, साथ में काम करना चाहिए, रीजन, लैंग्वेज और स्टेट, हर चीज को सोच के। बट नायकवाड़ी जो एमएलसी आपने इंडिया मींस एनडीए घटक दल ने चुना है, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, बिकॉज नायकवाड़ी जैसे उद्धव ठाकरे जी यूबीटी आरोप आप पर लगा रहे कि वंदे मातरम के खिलाफ बोलने वाले, वंदे मातरम के खिलाफ आवाज उठाने वाले, उसको आपने एमएलसी कर दिया। तो हिंदुत्व ये डायगोनल ऑपोजिट तरीके से आप जा रहे हो, आप बोलने का कुछ और इंप्लीमेंट कुछ और। कुलकर्णी साहब कैसे जस्टिफाई करोगे आप नायकवाड़ी एमएलसी? नहीं, एक तो मुझे ये नायकवाड़ी प्रकरण क्या है मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहूंगा। लेकिन आपने जो बात कही कि मोहन भागवत जी आजकल हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको इतना ही स्पष्ट करना चाहता हूं कि मोहन भागवत जी आजकल हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे। 1925 से जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापन हुआ तब से लेकर वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। उनका एकमेव एजेंडा है हिंदुत्व, यही राष्ट्रीयत्व, और ये राष्ट्रीयत्व लेकर आरएसएस काम करता है। उनके लिए कोई नई बात नहीं है, वो हरदम ये बात कहते हैं। उनका जो नेशनलिज्म की बात करते हैं, राष्ट्रीयत्व की बात करते हैं, और सर्वे बस सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, और वो आइडियोलॉजी जो है वो हमें मंजूर है। अब ये नायकवाड़ी प्रकरण क्या है मुझे मालूम नहीं, तो उसके ऊपर आपको प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। सर यहाँ पर एक छोटा सवाल है, वेरी 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 स्मॉल सर। शिवराज कुलकर्णी साहब, व्यास साहब आप वेट कर रहे हैं, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बस एक सेकंड। आसिफ फारूकी साहब जो अपनी जबान से बोल नहीं पा रहे, क्यों नहीं बोल पा रहे मुझे मालूम नहीं है। मैं उन्हीं की बात जो है, जो वो नहीं बोल पा रहे आपसे पूछ लेता हूँ। कुलकर्णी साहब, यूपी में ये देखा गया है, ज्यादातर ये देखा गया है कि 92% डेमोलिशन जो हैं वो सिर्फ मुसलमानों के घर डिमोलिश किए गए हैं, मुसलमानों की एस्टैब्लिशमेंट डिमोलिश की गई है। सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुसलमानों के हुए हैं या ब्राह्मणों के हुए हैं। तो सर यहाँ पे कोई ठाकुर का घर डिमोलिश नहीं हुआ, कोई किसी और का घर डिमोलिश नहीं हुआ, ये सिर्फ जो है डेमोलिशन और एनकाउंटर मुसलमानों के क्यों हो रहे हैं, वो जरा बता दीजिए कुलकर्णी साहब, अगर आपको देखिए राजीव जी, प्लीज। देखिए राजीव जी, उत्तर प्रदेश में जो भी एनकाउंटर हुए होंगे पुलिस के तरफ से, वो कोई ब्राह्मण है या कोई मुसलमान है देख के नहीं हुए। जो आगे का क्रिमिनल है उसकी जाति कोई भी हो सकती है, कोई भी धर्म उसका हो सकता है। अगर तुम पथराव करते हो, कोई जुलूस पर पथराव करते हो, झुंडगिरी करते हो, गोलियां चलाते हो लोगों के ऊपर, अब ओवैसी की गाड़ी पे भी गोलियां चलाएगी, कौन था वो? तो उसको नहीं आप उसको बख्शेंगे क्या? वो किसी धर्म का है करके? तो धर्म देख के या जात देख के इनकाउंटर नहीं होता है। अगर वहां का कोई गुनहगार अगर कोई ब्राह्मण होगा तो उसका भी इनकाउंटर होगा, और मुसलमान होगा तो उसका होगा। अब क्रिमिनलों की संख्या और क्राइम रेट उनका ज्यादा है तो उनके ज्यादा घर गिर रहे, एक दूसरे ब्राह्मण का गिरा होगा, एक दूसरे यादव का भी गिरा होगा। ये तो होगा ना भाई साहब, ये तो जात देख के नहीं होगा। कि कोर्ट करेगी, संविधान करेगा कि आपका मन करेगा, ये बताइए मुझको। एनक्रोचमेंट हटाने का सर आज तक कभी ठाकुर का कानून से कानून नहीं है। आपको कहा है सर कि आप बुलडोजर चलाइए, एनक्रोचमेंट हटाने का कानून नहीं है क्या? किसने कहा सर? अरे भाई साहब, तो कानून फॉलो करके कीजिए ना सर, आप कानून फॉलो करके कीजिए ना सर। आप एनक्रोचमेंट कर बंगला बनाकर समाज का नुकसान करते हो, और आपको वहां रहने देना, आपको 5 स्टार फैसिलिटी देना, आपको फ्री में अनाज देना, और आप लोगों पे गोलियां बरसाओगे, और आप जैसे जो पुरोगामी लोग करते हैं आप आंसू आएंगे उनके लिए। सभी क्रिमिनल लोगों के आप आंसू आ रहे हो, क्यों आंसू आ रहे हो? बोलो, गंदगी सुशील नहीं बोला है। व्यास साहब के पास मुझे जाने की इजाजत दें। फारूकी साहब, आपको जो कानून बोलता है उससे फैसला करके काम कीजिए। फारूकी साहब, व्यास जी ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, मैं उनके पास जा रहा हूं। सो व्यास जी नमस्कार। नमस्कार व्यास जी, आज की तारीख में यह देखा गया है कि एमबीए, एक तरफ एमबीए और दूसरी तरफ एनडीए, आपकी जो महायुति की जो सरकार है महाराष्ट्र में, खैर आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार है वगैरह वगैरह, मुझको तो यहां पे सबसे बड़ा इंजन जो दिख रहा है वो एकनाथ शिंदे दिख रहे हैं। मतलब जो उत्साह, जो एनर्जी, जो फोकस, जो कंसंट्रेशन, जो मतलब ऐसे काम करते हुए तो मैंने एक या दो पहले एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनको देखा, उसके बाद अभी एकनाथ शिंदे जी को देखा है। तो सर क्या बाकी सब लोग आपके साथ हैं
या फिर अकेले एकनाथ शिंदे जी को आपने अभिमन्यु की तरह छोड़ दिया है, बाकी सब लोगों ने कि भाई तुम लड़ो, देखा जाएगा आगे क्या होगा? व्यास साहब। बजाज जी, बारात में दुल्हा प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री जो होता है वो चुनाव के समय प्रमुख। और कल ये बात हमारे महायुति की जो संयुक्त पत्रकार परिषद थी उसमें देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा कि हमारा चेहरा जो है हमारे बगल में मुख्यमंत्री के रूप में बैठा है। तो हम तो एकनाथ शिंदे जी जो है सबसे ज्यादा सक्रिय, जो आप ही कह रहे हैं, जिस समय महाराष्ट्र की जनता के कल्याण और उनकी सेवा में लगे हैं और उनको लेकर के आगे बढ़े हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी इस द्वंद में फंसी है कि हमारा चेहरा कौन होगा। वो हम उनको बार बार पूछ रहे हैं, भाई अपने दूल्हे का तो नाम बता दो जिसको लेकर के आप चुनाव में आ रहे हो, तो वो बताने में असमर्थ है। अब रही बात शिंदे जी की, शिंदे जी अभिमन्यु तो नहीं है। थोड़ा बहुत जो हम धर्मशास्त्र को जानता हूं, अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में फंस गया, बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन शिंदे जी आप 23 नवंबर को देखेंगे प्रचंड बहुमत से महायुति की सरकार एक बार पुनः महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए सरकार में 5 साल के लिए आएगी। मतलब हरियाणा वापस होगा, मतलब दोबारा हरियाणा होगा महाराष्ट्र में। हम हरियाणा की तुलना नहीं कर रहे, महाराष्ट्र की जनता के प्रति हमारे जो जवाबदेही हमने निभाई है, कर्तव्य जो हमने निभाया है, सेवा की है, कल्याणकारी योजनाएं लाई है, चाहे वो बहनों के लिए हो, भाइयों के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, विकास के कार्य हो, ये हमको आत्मविश्वास दिलाता है कि हम प्रचंड बहुमत से 23 नवंबर को जीत करके एक बार पुनः यहाँ एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। व्यास जी, कांग्रेस ने आपका भ्रष्टाचार का पंचनामा खोल के रखा है, महाभ्रष्टाचार युति का पंचनामा। विधायक खरीद 50 करोड़, कॉर्पोरेटर खरीदना 1 करोड़, सीनियर ऑफिसर ट्रांसफर 1 करोड़, जिला सिविल सर्वेंट का ट्रांसफर 25 लाख, तलाती पेपर एग्जाम 15 लाख पेपर मिलने के लिए, ग्रुप यहां तक कांग्रेस का कहना है कि यहां तक ग्रुप डी क्लास वर्कर का भी आपने 7 लाख ये लिखा है खंडनी, जो प्राइस जो आप लेते हैं। तो पूरा पंचनामा रेट वाइज, रेट कार्ड आपका छाप दिया कांग्रेस ने, कितना सच्चाई है इसमें? नामबिहार जी, मैं आपका जवाब 2 बातों में दूंगा। एक तो जो रेट कार्ड है ये इनकी हताशा और निराशा बताती है कि जान रहे हैं कि इनका जो आने वाले 23 नवंबर को जब मतगणना हो जाएगी तो ये लोग कहाँ रहने वाले हैं, इसलिए अभी से वो हताशा निराशा में इस तरह के बयान दे रहे हैं। और लंबे समय तक सत्ता में ये लोग रहे तो इनको अनुभव है कि किस चीज का क्या रेट है। हम तो जनता की सेवा कर रहे हैं तो हमको तो रेट वेट कुछ पता नहीं है, हम इस बात को डिनाई करते हैं कि ये रेट जो है निकाले। अरे भाई, हमने हमारा प्रगति पुस्तक कल दी है, हमने हमारे 2.5 साल में जो वर्तमान सरकार ने शिंदे जी के नेतृत्व में जो काम की उसकी एक हमने रिपोर्ट कार्ड कल जनता के सामने रखा। अगर इनका है तो इस तरह से रखे ना, ये विथ प्रूफ कोई चीज रखे। कार्ड निकालना, नारेबाजी एक अलग चीज है, हकीकत क्या है, हकीकत को सामने रखे। हमने हकीकत एक पुस्तक के रूप में हमारी ये रिपोर्ट कार्ड है, हमने जनता के सामने रखी, क्योंकि काम करने वाला ही रख सकता है, खाली बातें करने वाला नहीं रख सकता। अब तो इसलिए हमें कोई इनसे हमको इनके ऊपर थोड़ी सी वो होती है कि ये अपनी स्थिति को समझ रहे हैं, हताशा निराशा में बोल रहे हैं, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने जैसी चीज नहीं है। जी कुलकर्णी साहब, देवेंद्र फडणवीस जी अब तक एकनाथ शिंदे जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले तक देवेंद्र फडणवीस जी राष्ट्रीय स्तर के नेता माने जा रहे थे और उनका काम भी ऐसा था, काबिल तारीफ था, प्रशंसनीय था, जबरदस्त था, सब लोग एवरीबडी वाज लुकिंग एट हिम। यहां तक कि ये भी बात चल रही थी नरेंद्र के बाद देवेंद्र, इस किस्म की बात भी चल रही थी। क्या एक डेलिबरेट अटेम्प्ट हुआ है? क्या देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने आप को कुछ जरा पीछे कर लिया थोड़ा सा बैकग्राउंड में, या क्या हुआ है? क्योंकि वो जो एक करिश्मा था उनके आसपास वो अभी मुझे नजर नहीं आ रहा है। कुलकर्णी साहब। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए, महायुति का जब से शासन महाराष्ट्र में आया, एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ जी शिंदे का जो सरकार है, महायुति का जो सरकार है, वो सरकार चलाने में शिंदे जी के साथ साथ देवेंद्र जी की अहम भूमिका रही है। बाद में अजीत दादा आए, अजीत दादा, शिंदे जी और देवेंद्र जी का जो समन्वय करने का काम है उसमें भी देवेंद्र जी की अहम भूमिका रही है। बात ऐसी है कि देवेंद्र जी ऐसे सिपाही है पार्टी के कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो निभाते हैं। मुझे आप बताइए, 14 से 19 जो व्यक्ति महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था और जिसके मुख्यमंत्री कार्यकाल में बहुत अच्छे विकास के काम पूरे महाराष्ट्र में हुए, एक बड़ा नेता करके ख्याति बन गई देवेंद्र जी की, उसके बाद में देवेंद्र जी के नाव पर ही
महाराष्ट्र में लोगों ने मैंडेट दिया। अब उद्धव जी ने गद्दारी की, है बात अलग है, लेकिन मैंडेट तो देवेंद्र जी के नाम पे दिया। इसके बावजूद जब सरकार बनती है और एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो देवेंद्र जी ने पार्टी का आदेश सराखों पर मानकर देवेंद्र जी ने एकनाथ जी शिंदे जी के साथ काम शुरू किया। तो ये तो देवेंद्र जी का त्याग भी है और देवेंद्र जी की मानसिकता बहुत स्पष्ट है। देवेंद्र जी बोलते हैं कि देखिए, मुझे पार्टी जो भी काम सौंपेगी वो मैं करने को तैयार हूं। अगर पार्टी बोलती है कि तुम मुंबई में काम करो तो मैं मुंबई में करूंगा, पार्टी बोलती है तुम दिल्ली में आके काम करो मैं वहां करूंगा, और वो बोलेगी अगर नागपुर में जाके काम करो तो वो करूंगा, और बोलेंगे अभी तुम रुक जाओ काम मत करो तो मैं वो भी करूंगा। इतनी निष्ठा के साथ काम करने वाले देवेंद्र जी पार्टी के सिपाही है, पार्टी के सेनापति है। तो मुझे नहीं लगता। अब दूसरी बात ऐसी है, एक और चीज आती है कुलकर्णी साहब, ये थोड़ा सा टेढ़ा सा सवाल है लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। आदरणीय सम्मानीय हमारे बड़े परम मित्र हैं, एक उनका नाम है नवाब मलिक। उनके खिलाफ देवेंद्र फडणवीस ने बहुत कुछ बोला, उनके खिलाफ एनआईए की भी एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ईडी की भी एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है। यहां तक के पत्र तक लिखा गया, देवेंद्र फडणवीस जी ने पत्र भी लिखा अजीत दादा पवार को कि इनको आप अपने साथ ना रखें। अब तो बात यह चल रही है कि उनको और उनके भाई को दोनों को वापस एनसीपी अजीत दादा पवार गुट की तरफ से टिकट मिलने वाली है इस चुनाव में। तो उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का रवैया क्या रहेगा सर? अभी तक तो आप बोल रहे थे कि ये देशद्रोही हैं, दाऊद के सहयोगी हैं, दाऊद के बिजनेस पार्टनर हैं। अब आप बताएं सर प्लीज। देखिए, नवाब मलिक जी पर देवेंद्र जी ने जो भी चार्जेस लगाए थे, सर जरा जोर से बोलिए, आप जो है क्या बोल रहे हैं सर? वो कोई राजकीय स्तर पर नहीं लगाते हैं, उनके पास उसके पुख्ता सबूत होते हैं। और देवेंद्र जी काम करने की शैली ऐसी कि देवेंद्र जी पुरावों के साथ काम करते हैं। देवेंद्र जी ने काम किया, नवाब मलिक जी के ऊपर केस चल रही है, और मुझे लगता है कि पार्टी का स्टैंड आज भी वही होगा, पार्टी का स्टैंड वही होगा और मिलने वाली है, ऐसा आप बोल रहे हैं। जब मिलने की बात आएगी तो देवेंद्र जी अपना रुख स्पष्ट करेंगे। और मुझे लगता है, जहां तक मुझे मालूम है, जहां तक मुझे पार्टी की सोच मालूम है, वहां तक इस बात को पार्टी की तरफ से विरोध ही किया जाएगा। लेकिन देने वाले हैं, देंगे क्या, दिया तो क्या होगा, ये बस इसके जवाब देने के बजाय हम राह देखते थोड़ी देर। अभी बहुत दिन तो बाकी नहीं है, 2-4 दिन बाकी है, राह देखते हैं। अगर उनको टिकट देने का समय आता है तो पार्टी अपना रुख स्पष्ट करेगी जो भी है उसके ऊपर। कुलकर्णी साहब, अगेन रिपोर्ट कार्ड वर्सेस रेड कार्ड। रिपोर्ट कार्ड का आपका एग्जाम्पलरी है, जबरदस्त है। जो भी मोदी साहब, फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी ने इनॉग्रेट यानी फाउंडेशन स्टोन डाला, उसका मोदी साहब ने उद्घाटन भी कर दिया। अनेक एग्जाम्पल इंक्लूडिंग अटल सेतु। बट जो आरोप है रेड कार्ड का, कांग्रेस ने जो आरोप आप पे लगा दिया, भ्रष्टाचार का, विधायक खरीदने का 50 करोड़, कॉर्पोरेटर खरीदने का 1 करोड़, सीनियर ऑफिसर ट्रांसफर 1 करोड़, जिला परिषद तलाती एग्जाम पेपर का पैसा, तो ये एक तरफ है रेड कार्ड और रिपोर्ट कार्ड में हमेशा। बिकॉज रेड कार्ड इसलिए कि अजित पवार तोड़ के आप लाए, आपने यूबीटी को तोड़ दिया, मींस एकनाथ शिंदे जी को तोड़ के लाए, तो देयर इज सम कॉम्पनसेशन एलिमेंट पीपल वांट टू नो। रिपोर्ट कार्ड वर्सेस रेड कार्ड, कुलकर्णी साहब। रेड कार्ड ये पूर्णतः झूठ बात है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में भी और उसके बाद भी राहुल गांधी जो भी भाषण देते हैं झूठ के सहारे देते हैं। अब क्या हो गया है, विपक्ष को एक आदत हो गई कि झूठ फैलाओ। पहले झूठ फैलाया कि संविधान बदलने वाले, फिर झूठ फैलाया कि आरक्षण बंद करने वाले, फिर जाति जाति की बात करने लगे, जाति जातियों को बांटने की बात करने लगे। हर तरह के झूठे आरोप लगाना, हर भाषण झूठा देना, हर भाषण झूठा देते हैं, तो आरोप भी झूठे लगाते हैं। इनके पास आरोप लगाने के लिए कोई जगह नहीं है। मुंबई का देखो, महाराष्ट्र के जो चुनाव होंगे, महाराष्ट्र के चुनाव का प्रमुख मुद्दा होगा उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में निकाले हुए 2.5 साल और उसके बाद में एकनाथ जी शिंदे के कार्यकाल में निकाले हुए 2.5 साल। इसकी तुलना होगी, इसका कंपैरिजन होगा। और कौन से 2.5 साल अच्छे थे? तो पहले 2.5 साल में स्थगित सरकार थी, हर काम को स्टे दिया जाता था। कोई भी काम, जितने भी विकास की योजनाएं की हुई थी इसके पहले शुरू थी, उसको स्टे दिया जाता था। घर में बैठते थे मुख्यमंत्री, वहां नहीं जाते थे मंत्रालय में। कभी 1-2 बार घर के बाहर निकले, जहां गाड़ी चलाते आती है बगैर ड्राइवर से, वहां तक के गए। तो महाराष्ट्र का सीएम कौन अच्छा था?
महाराष्ट्र की सरकार कौन सी अच्छी है, इसकी तुलना होगी। तो ऐसे इसमें बोलने के लिए 2.5 साल में किया क्या उद्धव जी के सरकार ने? कुछ नहीं किया, बता नहीं सकते कुछ भी लोगों के सामने जाने के बाद। तो फिर क्या कर रहा? फिर से राहुल गांधी की जो स्ट्रैटेजी है झूठ बोलने की स्ट्रैटेजी, सब आरोप करना, जाति मांगना, जहां लोगों को जाति पूछना, खुद की जाति नहीं बताना, मंदिर में जाना लेकिन खुद का धर्म नहीं लिखना क्या है तो बता नहीं सकते। तो ये जो झूठ की बात है ना, ये झूठ की बात है, कोई रेड कार्ड का विषय नहीं है। जनता को मालूम है, जनता के काम हुए हैं महाराष्ट्र में, विकास के प्रकल्प सामने आए हैं और बड़े ताकत से जनता के लिए अच्छे निर्णय। अरे क्या क्या रेड कार्ड है भाई, यहाँ तो हमारे बहनों से लेके किसानों तक जिस तरह से शिंदे सरकार ने दिया हुआ है, महायुति सरकार ने दिया हुआ है, यहाँ कहाँ रेड कार्ड की बात है? ये झूठ बात है और कांग्रेस झूठ का ही सहारा लेकर जनता के पास जाने वाली है। और जहां तक लड़की बहन का सवाल है, ये अटकलें लगाई जा रही हैं युति महायुति में कि जैसा मध्य प्रदेश में आपने क्लीन स्वीप किया था, शायद लाड़की बहन की वजह से, और उसके अलावा जो आपने 2% डियरनेस अलाउंस अनाउंस किया है, उसके अलावा बोनस भी अनाउंस कर दिया है, तो हो सकता है कि यहाँ पे महाराष्ट्र में भी रिजल्ट कुछ वैसा ही आए। ऐसा है क्या कुलकर्णी साहब? नहीं, देखिए लाडली बहन योजना जो चालू की वो तो रिजल्ट के लिए नहीं चालू की। हमारी जो बहन गरीब महिला है उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, आप अगर देहातों में जाके देखेंगे, स्लम्स में जाके देखेंगे तो महिलाएं वहां पर अच्छी दिवाली मनाने वाली है। आपको एक अच्छा उदाहरण मैं भाई साहब देता हूँ। इस देश की स्वर सम्राज्ञी लता दीदी की बहन और नामवंत ख्यातनाम गायिका आशा भोसले जी का इंटरव्यू आप देखिए। देखा। आशा भोसले जी ने कार्यक्रम में बोला है कि मैं शुक्रगुजार हूँ ये सरकार की, अगर मेरे बचपन में ऐसी सरकार रहती थी तो मुझ पर भूखा सोने का समय नहीं आता था। ऐसी सरकार क्यों नहीं थी? उनके आंखों में आंसू आए। तो आशा भोसले जी का जो वक्तव्य है ना, वो वक्तव्य प्रातिनिधिक स्वरूप का है। महाराष्ट्र की जो गरीब कष्टकरी महिलाएं है, उन महिलाओं का प्रातिनिधिक वक्तव्य है वो। जनता में क्या चल रहा है कांग्रेस वालों को पता नहीं, जनता में क्या चल रहा है महाविकास आघाड़ी को पता नहीं, लेकिन इस राज्य की महिलाएं भाई बहन मान रही है एकनाथ शिंदे जी को, देवेंद्र जी को, अजित पवार जी को। उनका हाथ कम गिर रहा है, इतनी राखियां उनको मान दी जाती है। तो ये लाडली बहन जो है, ये हमने चुनाव के लिए नहीं दिया, लेकिन एक तो बात पक्की है कि उनको अभी ये पता चल गया कि महाविकास आघाड़ी को अगर अपन वोट देते हैं तो ये तो योजना बंद करने वाले हैं, क्योंकि इनके जो पूर्व मंत्री है वो लाडली बहन योजना के खिलाफ कोर्ट में गए हुए। हर बार कल उद्धव ठाकरे जी बोल रहे थे कि हम इन्होंने शुरू की हुई सब योजनाएं बंद कर देंगे। ये सब बकवास योजना है। लेट्स गो टू आसिफ फारूकी साहब। आसिफ फारूकी साहब, महायुति बहुत कॉन्फिडेंट है, बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है सर, महाराष्ट्र में जीतने वाले हैं, स्वीप करने वाले हैं सर। वो तो लाड़की बहन योजना और बाकी योजनाएं हैं, उनसे आप कैसे लड़ेंगे? बोलिए सर फारूकी साहब। ये सब स्कीमें निकाल के इनको लगता है कि ये जीत रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज बहुत अलग है। ये घर में बैठ के सबको पैसे बांट रहे हैं, एक छोटे से लाडली बहन की वो स्कीम लगाई है और पैसे दे रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने पिछले दिनों 2 साल पहले पार्टियां तोड़ी हैं, अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि हर एक का रेट कार्ड लगा हुआ है, किसी का लाखों में है, किसी का करोड़ों पे है और किसी का कई हजार करोड़ में है और 100 करोड़ में है। इसी तरीके से इन्होंने लाडली बहन की भी एक कीमत 1500 लगाई है और ये समझते हैं कि हर चीज ये पैसे से कर लेंगे, बुलडोजर से ही अपने मन की वो मुराद पूरी कर लेंगे, गोली बंदूक से मार के ये फैसले करना चाहते हैं। तो ये जंगल का कानून करके ये घर में खुश है, लेकिन इस बार पब्लिक बहुत सतर्क है और वो इनको बहुत अच्छे से पहचान गई है और इनको इनकी जगह पे ले जाके छोड़ देगी। कुलकर्णी साहब, बोलिए कुलकर्णी साहब, आई नो यू हैव टू गो आल्सो। देखिए फारूकी साहब, अभी थोड़ी अपन बात करते हैं धारावी की। धारावी में जो मस्जिद है उसके ऊपर जो अतिक्रमण पथक हटाने गया था, क्या उन्होंने नोटिस नहीं दी थी? क्या कोर्ट के आदेश नहीं थे? क्या कोई व्यक्ति कोर्ट में नहीं गया था? कोर्ट के आदेश नहीं थे? क्या मस्जिद के व्यवस्थापन में
मुंबई महानगर पालिका को सर, लेके मैं नहीं दिया आपसे था एक दरखास्त कि हम करना खुद चाहता हटाएंगे हूं करके। कि आप जो बताइए, कहें कि आप आप इसके देखिए, आप बारे में बताइए, बोले। आप आरोप किस तरह से मैं लगाते ये हैं ना, बोलना चाहता आप हूँ, आरोप, ये मंदिर आप मस्जिद से आप कब बाहर निकलेंगे? आप ये बताइए ना, आप जो बोल रहे ये हैं बुलडोजर मंदिर बुलडोजर, मस्जिद से मैं आप आपको बताता हूँ, डेवलपमेंट की बात मैं कीजिए आपको ना बताता सर। हूँ ना, छोड़िए मेरे वो को इस बात इलीगल का है, जवाब दीजिए, ना चाहिए। मेरे को आप मैं जवाब ऑन दीजिए, रिकॉर्ड आपकी बोल रहा तरफ से हूँ, चाहिए अगर इलीगल है कि तो ना चाहिए, आपके धारावी लेकिन में, आप इस मंदिर आपके और धारावी मस्जिद के में झगड़े से जो और लोगों को एनक्रोचमेंट डिवाइड हटाने करके का कब तक जो सियासत करेंगे सर? वहां पर यूनिट गया था, अरे उसके सर, ऊपर अपने पथराव जहन क्यों को किया थोड़ा गया, खोलिए। गाड़ियां आप ये क्यों मंदिर तोड़ी गई, मस्जिद और हिंदू गाड़ियां मुसलमान तोड़ने वाले सिख कौन ईसाई थे, के मसलों से बाहर पथराव आइए, करने वाले कौन थे, इंसानियत के लिए क्या काम कीजिए बताइए, सर। आसिफ फारूकी ये आप साहब, पैसे बताइए, लेन देन से मस्जिद लोगों में को एक्शन कमेटी ने जितना लिख के चाहते हैं दिया ये था सब कि करते नहीं, रहेंगे आप। कि हमने वहां पर एनक्रोचमेंट किया है, हम वहां पर एनक्रोचमेंट हटाएंगे, आपने ये कहा लिख कि के दिया था लाडकी कि बहन नहीं। स्कीम, बताओ, आपको कुलकर्णी सवाल साहब विल गेट बैक टू पूछो, यू। आप जवाब पूरे करें कुलकर्णी साहब, उसका। हम लोग आपके पास आते हैं। लाडकी बहन स्कीम को आपने आरोप लगा दिया खजाना खाली होगा, ये ठीक नहीं है, पॉलिटिकल डिसीजन है, इलेक्शन एक्सपीडियंसी है, मगर आप लाडकी बहन स्कीम के सामने महालक्ष्मी योजना लाने वाले हो आसिफ फारूकी साहब। ये खबर है कि आपका मैंडेट सर ये फ्री में पैसे बांट के आप ये तो सिर्फ 1,500 बांट रहे हैं, आप 8,500 बांटने की बात कर रहे हो, तो ये 8,500 कहां से आएंगे फारूकी साहब? सर ये 8,500 महालक्ष्मी योजना कहां से आएंगे? नहीं, हमारी जो भी स्कीम आएगी सर, आप देखिएगा वो किसी को सिखा के स्किल के तरीके से आएगी, किसी बहन को बेटी को उसको अपने पैरों पे खड़े करने वाली आएगी। ये 1,000 रुपए और 1,500 रुपए दे के वोट खरीद के अपनी सत्ता को गर्म करना और सत्ता को लाना, ये वाली हमारी स्कीम नहीं है। आपका मैनिफेस्टो, हरियाणा का मैनिफेस्टो फारूकी साहब पढ़ता हूं, 6,000 बुढ़ापा पेंशन, 6,000 दिव्यांग 6,000 में 6,000 हम उस विधवा बहन को पेंशन काम दिलाना चाहते हैं। मैं आपको अक्सर बोल रहा हूँ, ये कहां से आप बच गए? आपके सरकार नहीं आई तो कहां से फुलफिल करते हैं आप? 2,000 पर मंथ आप देने वाले, ये तो 1,500 देने वाली बात है, आप 2,000 हरियाणा में देने वाले थे, तो ये कैसे होता फारूकी साहब? नहीं, हमारी जो ये स्कीमें है ना सर, वो डेवलपमेंट की स्कीम है, हमारी फ्री की स्कीमें नहीं है। और हम फ्री हर महीने 6,000 देने वाले थे सर, 6,000 में हम उसको कारोबार कराना चाहते हैं। आप नहीं, आप तो विधवाओं को क्या कारोबार देंगे? आप बुढ़ापा पेंशन 6,000 स्किल सिखाएंगे सर, हम उसको स्किल सिखा के काम कर। हमारी जब गवर्नमेंट आएगी आप देखिएगा, हमारा काम खाली पैसे बांट के अपनी सत्ता गर्म करना नहीं है। हमारा काम है कि हम किसी भी गरीब को उसके पैरों पे उसको खड़ा करके 6,000 से 6 लाख कमवाना चाहते हैं। ये तो 1,500 रुपए 1,000 रुपए दे के वोट लेके फिर अपने सत्ता में आके भूल जाएंगे। लेकिन हम ऐसा काम नहीं करना चाहते सर। तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम फेल हुआ और मंदिर कर्नाटक में 7 गारंटी फेल हुआ, हिमाचल प्रदेश में आपने कहा था कि 5 लाख जो नौजवानों को नौकरी देंगे, वहां पर आप दे नहीं पाए। आपने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी अभी कितने दिन हमारी हुकूमत को आए हुए, और ये सब सेंटर की मेहरबानियां हैं। हमको टेढ़ी नजर से देखा जाता है, हमारे साथ अलग तरीका का व्यवहार किया जाता है। सेंटर से हमको कोई वो हेल्प नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हम स्टेट में बड़ी मुश्किल में रहते हैं सर। हमारे हालात बड़े मुश्किल में हैं और ये जनता भी अब समझने लगी है सर। तीनों स्टेट में तकलीफ हो रहा है। One final word from Mr. Kulkarni, he has to go. He's got 10 minutes more. Kulkarni sir, 10 minutes more. one final word from you. I know you have to go. Kulkarni sir, about Maharashtra. हाँ, महाराष्ट्र के बारे में आप संक्षिप्त में समेशन आपकी बोलिए सर। महाराष्ट्र में 2.5 साल में एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, देवेंद्र जी फडणवीस के नेतृत्व में और अजितदादा पवार के नेतृत्व में महायुति सरकार ने जो काम किया है, ऐसा काम पिछले 2.5 साल में उद्धव ठाकरे जी के कार्यकाल में 5%, 10% भी नहीं हुआ। जीरो काम था स्टे की सरकार की। ये तुलना होने वाली है और लोकसभा में हम वो नैरेटिव नहीं समझ पाए, फेक नैरेटिव हम समझ नहीं पाए, इसलिए हमारा नुकसान हुआ। लेकिन अभी महायुति का कार्यकर्ता भी, महायुति का वोटर भी और समाज के सभी तबके, जिस तरह से हमने समाज के सभी तबकों को वहां उनके तक हम पहुंचे हुए हैं, उनको तरफ योजना का लाभ पहुंचाया है। हम यहाँ पर महाराष्ट्र में निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। हरियाणा की पुनरावृत्ति महाराष्ट्र में होगी,
जनता हमारे साथ है, ये विश्वास के साथ हम चुनाव में जाने वाले हैं। कुलकर्णी साहब, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आज कांग्रेस का चार्ज है आप पर कि महंगाई मैन मोदी, टमाटर से लेके पोटैटो से लेके सरसों का तेल से लेके व्हीट, राइस, फ्रूट्स, पल्सेस, मिल्क, एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव। कुलकर्णी साहब, वो पूरा आंकड़े दिए जो आंकड़े शायद खाद्य मंत्रालय की तरफ से उपलब्ध थे। महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, जुमला, झूठ, डर का माहौल बनाना, नफरत की राजनीति। तो क्या ऑल दिस विल स्टिक? जो कांग्रेस का चार्ज है, राहुल गांधी जी का चार्ज है मोदी जी पर और यहां के सरकार पर, विल इट स्टिक कुलकर्णी साहब इलेक्शन में? देखिए, एकदम सीधी बात है कि देखिए 2014 से मोदी जी प्रधानमंत्री है, उसके पूर्व तो कांग्रेस का गवर्नमेंट था। चलो उनको बोलना, अगर आप अगर सच्चे हो तो मनमोहन सिंह जी के 10 साल के कार्यकाल के हर महीने के और हर साल के जो आंकड़े हैं महंगाई की, वगैरह बताइए और उससे तुलना कीजिए ना। उससे तुलना क्यों नहीं करते हो? यहां विकास के काम हो रहे हैं, बीच में कोरोना हुआ, जागतिक मंदी का विषय है, ठीक है, दिक्कतें सामने है सरकार के सामने, लेकिन सरकार की नियत है उसके ऊपर यश उत्पादन करने की। आप कांग्रेस के किसान बताइए ना, कांग्रेस का क्यों नहीं बताते हो? खुद का छुपा के रखते हो, खुद का छुप कर रखते हो और दूसरों का झुक कर देखते हो। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कैसे होगा? अगर कांग्रेस के दौर में बढ़ती थी तो 7 साल में आपने क्या दिया, ये लोगों को बताना पड़ेगा। और आपको एहसास नहीं है इस गरीब जनता के महंगाई का? आपका पेट्रोल का भाव आज अरे भाई बढ़ गया साहब, है, गरीब जनता का डीजल ऐसा आपको होगा तो लाडली बहन का विरोध करते दिखा। ट्रांसपोर्टेशन अगर बढ़ गया तो हर चीज बढ़ जाएगी। लाडली बहन के खिलाफ आप दवाओं कोर्ट की में गए कीमतें हो, बढ़ गई है, आप कोर्ट में आज गए हो, सरकारी लाडली की बहन की कीमतें बढ़ गई है, गरीब जनता को मिले रोजमर्रा की पैसे उनको जिंदगी कैसे नहीं इंसान जाते? की परेशान हो गई है और आपको अभी तक एहसास नहीं है महंगाई नहीं बढ़ी है। मुझको तो हंसी आ रही है आपकी बात पे सर। क्या आपको जनता की तकलीफ का भी एहसास नहीं है? आप कम से कम ये रिकॉग्नाइज करते कि महंगाई बढ़ी है और दूसरे काम हो रहे तो मैं थोड़ी देर के लिए समझता, लेकिन आपको गरीब जनता के बारे में 1500 रुपए दे के आप उसका पेट भर देना चाहते हैं। 5 किलो दाल चावल दे के, उनको गेहूं दे के आप समझते हैं कि उसकी जिंदगी आप चला रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? सुशील व्यास जी, आपका पेट्रोल की हिसाब कीमत है, 104 रुपए हो गई है, देश की जनता के लिए डीजल की कीमत सर, 95 रुपए। कितने करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा? कभी कांग्रेस के जमाने में हुआ था क्या? क्या बात कर रहे हो? जरा राशन कार्ड के, राशन की दुकानों में जाके जरा लाइनें चेक करो। आप जिसकी बात कर रहे हो ना, देखिए आप जो कांग्रेस ने हमेशा जो है उसको मजबूत बनाने का काम किया है, जनता को उसको अपने पैरों पे कुल्हाड़ी पैरों पे मजबूत से खड़ा करने का काम किया है। इस तरीके से 2 किलो 5 किलो दे के और गरीबों की तरह भिखारी की तरह नहीं काम करने का काम किया है कांग्रेस से। व्यास साहब को उनके हाथों को, उनको पैरों को मजबूत बड़ी करने देर का से चुप काम किया बैठे। है। क्या व्यास साहब बीच में बोलते नहीं है किसी के? बहुत सभ्य किस्म के हैं वो, बहुत राजू ही जी सांस्कृतिक है जी। राजू जी, मैं आपकी थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। मालूम है सर, मालूम है। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। नमस्कार सर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू, नमस्कार जी। व्यास जी, जी नमस्कार। व्यास जी, महंगाई, पेट्रोल की कीमत 104 बल्कि 104 रुपए 90 पैसे हो गई है, और जहां तक के डीजल का सवाल है सर, 95 रुपए का डीजल हो गया है। तो उसका क्या आपको लगता है कि लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? और जो अभी प्रदीप जी लिस्ट सुना रहे थे महंगाई मैन मोदी को लेकर के, तो सर आप ये बताइए, टमाटर से लेके, आलू से लेके, बटाटा से लेकर के मटर तक, अरे इतने महंगे हो गए सर। मार्केट के अंदर जाइए, हालत खराब हो गई है। दिवाली की शॉपिंग करने को नहीं हो रहा अभी लोगों को। बताइए व्यास जी। आजाद जी, जो महंगाई का स्तर बढ़ रहा है निश्चित रूप से हम सब के लिए, इंक्लूडिंग जो सरकार में है, विपक्ष में है, आम जनता है, बड़ी चिंता का विषय है। और उस पर निश्चित रूप से जो सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार है, उस पर ध्यान दे रही है। संबंधित जो विभाग है उस पर अपना जो उचित कदम उठाना चाहिए उठा रहे हैं। वो आएगा धीरे धीरे, वो जितना यथाशीघ्र उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा रही। ये नहीं है कि पहली दफा कोई ये चीज हो रही, भूतकाल में भी इस तरह के भाव बढ़े हैं, घटे हैं, तो उनको पेट्रोल और डीजल के इतने नहीं बढ़े कभी। फारूकी साहब माफी चाहता हूँ। फारूकी साहब, मैं दिन में 4 डिबेट में जाता हूँ, मैं बीच में नहीं बोलता, ना किसी को बोलने देता हूँ। आप बोल लीजिए, मैं 20 मिनट चुप बैठ जाऊंगा, आप बोल लीजिए। नहीं, व्यास जी को बोलने देना, फारूकी साहब प्लीज।
आपने नहीं, काफी वो बोला है failure सर, है, सबने ये आपकी मान बात के सुनी चलिए है। आप। आप बोल दीजिए, मैं चुप बैठ जाता हूँ। इस तरह से डिबेट नहीं होती। फारूकी साहब, फारूकी साहब सर, उनको बोलने दीजिए ना। व्यास जी बोलिए प्लीज, आप लोग 30 मिनट बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था। ये इस तरह से डिबेट नहीं होती है। बोलिए बोलिए सर, व्यास जी व्यास जी बोलिए। बोलिए। ऐसा है कि ये महंगाई निश्चित रूप से हम इसको डिनाइल मोड पे तो है नहीं, जो है सच्चाई है, जो हकीकत है उसको कोई नकारा नहीं जा सकता। लेकिन उसको सरकार निश्चित रूप से ध्यान दे रही है, उसको यथाशीघ्र जितना जल्दी हो उसको संबंधित विभागों के द्वारा कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जहां पर हो सकता है, कोई मान लो कोई कंट्रोल लाना हो या उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कोई चीजें हैं, किसी चीज का इंपोर्ट रोकना है, एक्सपोर्ट रोकना, वो सारी चीजें उस पर ध्यान दिया जा रहा है। और वो लेकिन व्यास आप जी, देखेंगे, लेकिन आप व्यास देखेंगे जी, ये पहली बहुत बार ऐसा जल्दी हुआ ये है, जो कीमतें हैं उसको कंट्रोल किया जाएगा। सर पहली बार ऐसा हुआ है कि डॉलर की कीमत 84 रुपए के ऊपर चली गई है सर। आज की तारीख में, आज देखिए ना, पिछले 4 दिन से इट इज अबव 84 रुपीज। सर ये क्या है व्यास साहब? इसकी तो जवाबदारी, आपको जवाबदेही तो होगी ना आपको। नहीं नहीं, बिल्कुल जवाबदेही है। हम इस जवाबदेही से भागते हुए नहीं है। और हमारे वित्त मंत्रालय जो राष्ट्र का है वो निश्चित रूप से सीतारमन जी के नेतृत्व में उसमें कार्य कर रहा है और उस पर भी उचित कदम उठाने का प्रयत्न चल रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं, इसको जवाबदारी हमारी है, जो सरकार सत्ता में है उसी की जवाबदारी है, हम कोई उससे भाग भी नहीं रहे। व्यास जी, ये बार बार आप पे आरोप है, चाहे राहुल गांधी जी हो या लोकल यहाँ नाना पाटोले जी हो, कांग्रेस के लीडर्स है, अडानी के एजेंट अडानी के अकाउंट में सुनामी की तरफ पैसे आ रहे हैं और आम आदमी के अकाउंट से तूफान सा पैसा निकल रहा है। No, that is a general charge and people are seeing it. चाहे वो दरावी प्रोजेक्ट हो, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट हो, आगे जाके जो अभी लास्ट कैबिनेट में 125 एकड़ मुलुंड में उनको वापस दे दिया रीडेवलपमेंट के हिसाब से, तो ये लोग देख रहे हैं। तो ये चार्जेस राहुल गांधी जी का, नाना पाटोले जी का क्या लग सकते हैं आप पे इलेक्शन पे, कि लोग जो आम जनता के अकाउंट से सुनामी की तरफ पैसे बाहर निकल रहे हैं और अडानी के अकाउंट में सुनामी की तरह पैसे अंदर जा रहे हैं उसके अकाउंट में। तो व्हाई द फेवरेटिज्म ऑफ अडानी? व्यास जी, नामबिहार जी, जो जितनी बातों का जिक्र आपने किया, 22 तारीख का एक बार जब नोटिफिकेशन आ जाएगा चुनाव का, तमाम पब्लिक मीटिंग्स में मैं भी उनका जवाब दूंगा जाकर के सार्वजनिक सभाओं में। अब डिबेट में बैठे हैं तो डिबेट के तरीके से उसका जवाब दिया जाएगा। अगर राहुल गांधी जी को या नाना पटोले जी को लगता है कि अडानी को कोई बहुत ज्यादा कानून को एक दरकिनार करके कोई फेवरेटिज्म की गई है, तो हिंदुस्तान की न्यायालय खुली हुई है सबके लिए, कोई भी जा सकता है, उसको चैलेंज कर सकता है। अगर उनको ना पता हो तो अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में जाके आप रिट पिटीशन कर लो, अंडर आर्टिकल 32 ऑफ संविधान जाके सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन कर लो, चैलेंज कर लो कि कौन सा फेवरेटिज्म किया है। अब उसका जवाब अदालतें दे देगी। अगर कोई कानूनी गैर कानूनी तरीके से कोई काम हुआ है तो उसका उनको जवाब मिल जाएगा और उसका उचित निर्णय हो जाएगा। अब बाकी चीजें ठीक है, वो उनका तो उनके साथ दिक्कत क्या है कि जो पब्लिक मीटिंग में स्पीच देते हैं वही वो डिबेट में बात करते हैं। सवाल वो नहीं, अगर जो उसका जवाब देना, मैं भी जाऊंगा जब सार्वजनिक सभाओं में 10 दिन बाद मैं भी यही भाषण दूंगा, मैं भी उनका यही जवाब दूंगा। लेकिन आज हम टीवी में बैठे हैं तो गंभीरता के साथ कोई चीज होनी चाहिए। अगर कोई इस तरह की हकीकत है तो एक न्यायालय है, हिंदुस्तान की न्याय है, जिसका कल ही हमने चेहरा बदला है। संविधान की किताब न्याय देवता के हाथ में दी है हमने। न्याय की मूर्ति से अब पट्टी हटा दी गई है, पट्टी हटा दी गई है, तलवार हटा करके न्याय संविधान की किताब हाथ में दी गई है। तो संविधान सबके लिए है, जाइए, न्यायालय खुला है। ये कह दीजिए कि अडानी को इस तरह से गैर कानूनी तरीके से मदद की गई। फारूकी साहब, जो अडानी जी को हर चीज दे दी गई है, उसका जिक्र तो हम लोग भी करते हैं यहाँ पे। अब जैसे व्यास जी कह रहे हैं, आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते उसके खिलाफ? उसके कोर्ट क्यों नहीं जाते? न्यायालय क्यों नहीं जाते? नहीं है क्या सर? जी बोलिए। सबके लिए है, इनके पास अडानी के लिए कोई बुलडोजर नहीं है क्या? सर पहले जिस तरीके से ये दूसरे लोगों को डील कर लेते हैं खट से, अब वो जब अडानी की बात आई तो कोर्ट का बिल्कुल हम जाएंगे और उसके ऊपर विचार भी हो रहा है। लेकिन हमको ये अंदाजा है कि इस वक्त अगर हम गए तो ये लंबे रास्ते पे हम चले जाएंगे। इसलिए बहुत सोच समझ के अडानी, क्योंकि ये छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज हो गए हैं और उसको पूरी इस गवर्नमेंट का पूरा बैकिंग है, उसका सहारा है। इसलिए इसके ऊपर कोई भी हाथ डालने से पहले सारे मामला सही करके हम अच्छे तरीके से जाएंगे सर। ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे। फारूकी जो साहब, बातें बोल रहे हैं उसको गंभीरता से लेना चाहिए। फारूकी साहब, एकनाथ शिंदे जी ने
मुंबई के सब टोल टैक्स क्लियर कर दिया। 5 एंट्री पॉइंट है मुंबई में आने वाले और जाने वाले को, उसको क्लियर कर दिया, नो टोल टैक्स। बीएमसी के स्टाफ को बोनस दिया, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को बोनस दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। तो इतना, लाड़की बहन तो छोटा स्कीम है, उसके लाड़की बहन स्कीम भी है, उसके बाद 10,000 जो स्टूडेंट्स है, 10 लाख स्टूडेंट्स को वो दे दिया गुलाबी। तो इतने करीबन 10 स्कीम्स और इतने जबरदस्त तरीके से गरीब कल्याण योजनाओं को इंप्लीमेंट किया। क्या चांस लग रहा है कि आपको ये सब विपरीत होकर आप जीत पाएंगे क्या? नहीं, मैं इसकी तारीफ करूंगा सर कि जो टोल टैक्स है वो जबरन लिया जा रहा था कई सालों से, उसका टोल टैक्स बंद हो जाना चाहिए था, उसकी पूरी कीमत हम लोगों ने अदा कर दी थी और ये बहुत बड़ा कदम उठाया है, मैं उसकी तारीफ करूंगा। और लेकिन मैं उसके साथ ये भी कहूंगा कि बम्बई में जो ये वर्ली सीलिंग के ऊपर ये टोल टैक्स ले रहे हैं, उसी के साथ उसको भी खत्म करना चाहिए और शिंदे जी को वो कदम भी फौरन ले लेना चाहिए था, लेकिन अब तो आचार संहिता लग गई है तो इसके लिए वो शायद न लग पाए। तो ये अच्छा कदम है क्योंकि उसमें उन्होंने डेटा निकाला होगा और उसकी कीमत अदा हो गई है, सालों से अदा हो गई थी। और दूसरे जो नुकसान टोल टैक्स से हो रहा था कि टाइम बड़ा नुकसान होता था उसके अंदर सर, गाड़ियां लाइन से लग जाती थी और उसके ऊपर बड़ी मुश्किल हो जाती थी। तो आप मानते हैं फारूकी साहब, आप मानते हैं कि चीफ मिनिस्टर शिंदे एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो एग्जीक्यूशन में जबरदस्त तरीके से एग्जीक्यूशन करता है? आज तक हमने कोई ऐसा देखा नहीं कि सीएम कि तुरंत डिसीजन ले लिया और तुरंत इंप्लीमेंट कर दिया। तो बहुत सारे डिसीजंस हम देख रहे हैं कि सीएम एकनाथ शिंदे जी ने तुरंत सोचा और इमीडिएट इंप्लीमेंट कर दिया। इस चीज को मानते हो क्या फारूकी साहब? नहीं सर, देखिए इस किस्म का डिसीजन जब इलेक्शन का वक्त आता है तो आमतौर से चीफ मिनिस्टर वगैरह या जो भी रहते हैं सत्ता के अंदर, वो बहुत ही हार्ड डिसीजन लेते हैं और उन्होंने हिम्मत करके लिया है अपनी पार्टी के। ऐसी मिसालें बहुत सी हैं कि इस किस्म के डिसीजन लेते हैं इलेक्शन के वक्त। तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से नहीं इम्प्रेस हूँ कि उन्होंने इस वक्त जो लिया है। हाँ, इसको बरकरार रखते, इससे पहले वो ले लेते, 2 दिन पहले 3 दिन पहले इन्होंने टोल टैक्स का लिया, सोचने का भी मौका नहीं दिया। तो बहरहाल इसको आने के बाद और भी जितने टोल टैक्स वगैरह हैं उसको करें। बिल्कुल हम इम्प्रेस हैं उनकी अच्छी चीज़ों से, क्योंकि वो डेटा से अगर काम करते हैं तो। लेकिन जो जिस तरीके से उन्होंने लिया है और जिस मौके पे लिया है, तो फिर से मैं कहूँगा कि शक ज़रूर है हमको कि ये आइंदा भी इस किस्म से डिसीजन ले पाएंगे कि नहीं, इसके ऊपर। लेकिन व्यास साहब, जो चलिए फारूकी साहब ने आपकी तारीफ तो करी, उसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए फारूकी साहब का। मैं तहे दिल उनका आभार मानता हूं कि कम से कम अच्छे काम का उन्होंने नहीं सर, शुक्रिया अदा किया। नहीं, अच्छे काम किए, हमेशा तारीफ करते हैं फारूकी साहब, ये देखा हमने, ऐसी बात नहीं। एंड फारूकी साहब आई थिंक हैज रीच्ड होम, वो अपने ऑफिस पहुंच गए हैं गाड़ी से और चलते उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा फारूकी साहब, उसके लिए आपका और भी शुक्रिया। मगर आई वांट टू आस्क व्यास जी, ये तो डेवलपमेंट में एकनाथ शिंदे जी का हाथ कोई पकड़ नहीं सकता इमीडिएट डिसीजंस लेके इंप्लीमेंट करने में। उन्होंने दिखा दिया 2.5 साल में जबरदस्त तरीके से। मगर उद्धव ठाकरे जी का आरोप है, उन्होंने रतन टाटा जी के टाटा सॉल्ट, बोले एक टाटा ग्रुप थे जो देश के लिए नमक दिया था, और एक एकनाथ शिंदे जी है जो सॉल्ट पैन लैंड्स को डेवलपर को दे रहे हैं और खास करके अडानी को दे रहे हैं। तो लोग सॉल्ट को भी याद करेंगे और सॉल्ट पैन को जिस प्रकार से बेचा गया है उसका भी याद करेंगे। उद्धव ठाकरे जी का आरोप है व्यास जी आप पर। नाम्बियार जी, अब तो मैदान बहुत दूर नहीं है, 22 तारीख से नॉमिनेशन भरना शुरू हो जाएगा और चुनाव है। महाराष्ट्र की 9 करोड़ 63 लाख जनता के सामने वोटर के सामने जाके उद्धव जी अपनी बात कह दें, हम अपने जवाब दे देंगे, हम बता देंगे सच्चाई क्या है और जनता फैसला कर लेगी। 23 तारीख को मतगणना हो जाएगी। तो अब हमको विपक्षी क्या कह रहे हैं हताशा निराशा में, उसका जवाब देने का समय नहीं। इस समय हमारे पास एक ही। व्यास साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप बार बार 22 तारीख की बात कर रहे हैं, बार बार इलेक्शन की बात कर रहे हैं। सर, हर चीज चुनाव के ऊपर निर्भर नहीं होती है। कभी कभी सरकारों को अनपॉपुलर डिसीजन भी लेने पड़ते हैं जो जनता की मर्जी के खिलाफ हो, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए। जैसे पंडित जी ने लिए, पंडित नेहरू ने जिस प्रकार नींव रखी इस देश की, उसमें बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। जो सॉल्ट पैन लैंड्स हैं सर, दे आर अ नेसेसिटी फॉर मुंबई।
एनवायरमेंटलिस्ट का ये कहना है कि दोज आर कैचमेंट एरियाज फॉर द मॉनसून वाटर। पूरी फ्लडिंग हो जाएगी सर पूरी मुंबई में अगर आपने सॉल्ट पैन लैंड्स को डेवलप कर लिया। आई वुड रिक्वेस्ट यू व्यास साहब, एज आई हैव बीन रिक्वेस्टिंग अगेन एंड अगेन, प्लीज रिकंसिडर योर डिसीजन। सॉल्ट पैन लैंड को नो डेवलपमेंट जोन रहने दीजिए। उसको अगर आप डेवलप करते हैं तो पूरी मुंबई डूब जाएगी सर। व्यास साहब अब आप बोले प्लीज। बजाज जी, आपकी चिंता के साथ मैं अपने आप को जोड़ता हूं और मेरे दल को भी जोड़ता हूं। ऑफिशियली ये मेरा बयान है, मैं अपने दल को भी उस चिंता से जोड़ता हूं। और निश्चिंत रहिए, कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जो मुंबई की जनता को खतरे में लाता हो और किसी भी कानून का उल्लंघन होता हो। अब ये सारी बातें अभी तक है। अब आचार संहिता कल से परसों से लग चुकी है, तो अभी तो 2-2.5 महीने तो कुछ होना नहीं। अगर इसके बाद इसमें जो विकास, जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगा, वो सारी बातों को मद्देनजर रख के होगा। मुंबई की एक भी व्यक्ति को खतरे में अगर उनकी जिंदगी जाती है, ऐसा कोई कदम सरकार की तरफ से या हमारे दल की तरफ से नहीं उठाया जाएगा। फारूकी साहब, since we really have come to the end of this discussion, your final word on महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको क्या लगता है क्या होने वाला है सर? और पूरे देश की आज की जो वस्तुस्थिति है उसके बारे में भी अगर आप कुछ बोलना चाहें तो प्लीज बोले। फारूकी साहब प्लीज बोले। मुझको ऐसा लगता है कि आप लोग ने जो पिछले दिनों इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं चंडीगढ़ वगैरह के, उसकी वजह से आप लोग निराश हैं। हम लोग निराश नहीं है सर। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हमारे जो कैडर था, हमारे जो लोग थे, वो थोड़ा गलतफहमी में थे, वो जाग गए हैं। और उन्होंने, बल्कि अभी मैं एक मीटिंग अटेंड करके आ रहा हूँ और हम लोग बिल्कुल कमर बस्ता, जिसको एक वर्ड है, यानी बिल्कुल तैयारी के साथ और बहुत लगन के साथ हैं। और हमारे जो दूसरे पार्टनर हैं, ख़ास तौर से उद्धव सेना और पवार साहब, वो लोगों का बहुत अच्छा साथ है। और मैंने पिछले दिनों महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में भी सफ़र किया, तो एनसीपी शरद पवार की बहुत ही ज़्यादा मजबूती के साथ लोग उसकी तरफ नज़र देख रहे हैं, कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। बल्कि अजीत पवार के साथ इतनी ख़राब बातें लोग बोल रहे हैं कि मुझको लगता है कि एनडीए को उनके बारे में सोचना चाहिए कि ये उनको साथ में रख, जिस तरीके से वो रह रहे हैं विदाउट एनी बेनिफिट, तो वो कोई उनका साथ नहीं है। और हम लोग बहुत अपबीट हैं सर। और आप देखेंगे 1 महीने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे, 20 तारीख को पोलिंग होगी और 23 तारीख को रिजल्ट्स आएंगे, तो आपको कामयाबी का झंडा क्या बात है, वंडरफुल। व्यास साहब, यू वांट टू से समथिंग? आपने तो पहले कह ही दिया है कि आप लोग आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। और स्पेशली जो यूबीटी ने आप पे आरोप लगा कि जल, जमीन, जंगल सब बेच दिया आपने, तिजोरी टोटल खाली है। अब ऐसा है नाम्बियार जी, स्थगिति की सरकार चली गई, इस समय गति और प्रगति की सरकार चल रही है और वो आगे भी चलेगी, ये हमारा आत्मविश्वास है, क्योंकि जनता हमारे साथ है ना। और एक जो आपके बजाज जी ओपनिंग रिमार्क में आपके और नाम्बियार जी के बीच में कोई एक चर्चा चल रही थी माननीय समीर वानखेड़े जी को लेकर के, तो मैं अधिकृत रूप से आपसे बयान दे देना चाहता हूं कि इस तरह का कोई प्रपोजल हमारे दल के पास नहीं है कि वो हमारे दल को ज्वाइन कर रहे हैं या वो धारावी से कोई उम्मीदवार बनना जा रहे हैं। ये मात्र कयास जो है वो मीडिया में या सार्वजनिक रूप से कौन चला रहा है, क्या चला रहा है, इस तरह की कोई चर्चा हमारे दल में नहीं है और हमारे पास ना कोई प्रपोजल उनकी तरफ से है। Right, wonderful. Wonderful. We'll be meeting Sameer Wankhede sahab shortly, and we'll definitely ask him, you know, as to what's going on. लेकिन एक चीज तो है व्यास जी, अभी जो फारूकी साहब ने बोला, मैं चाहूंगा आप उस पर रिएक्ट करें, अगर रिएक्ट करना चाहें तो। मुझे ऐसा लगता है जो अभी फारूकी साहब ने बोला हरियाणा के चुनाव के बारे में कि भाई बाकी सब लोग डिसअपॉइंट हो गए। वेरी फ्रैंकली आई एम ऑल्सो शॉक्ड एट द हरियाणा रिजल्ट्स, बिकॉज जो हमें रिपोर्ट मिल रही थी, बच्चा ये बोल रहा था कि भाई कांग्रेस आने वाली है। अब ये कैसे उल्टा हो गया, क्या हो गया, इसका तो एनालिसिस होगा। क्या अंदर की डिसेंट थी 17 जगह पर, जो माशाल्लाह जो डिसेंटर्स हैं, रेबल्स जो हैं, बागी जो हैं कैंडिडेट कांग्रेस के, वो खड़े हो गए वगैरह वगैरह, वो अलग बात है। लेकिन इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द कांग्रेस। कांग्रेस की आंखें खुल गई हैं और कांग्रेस ज्यादा सतर्क हो गई है। और कांग्रेस में जो अहंकार आ गया था इसके पहले कि किसी को बिल्कुल समझो ही ना कुछ,
वो शायद खत्म हो गया है, तो अब वो बहुत सेंसिबली काम कर रही है, अकल से काम कर रही है। बड़ी खतरे की स्थिति है सर आपके लिए, व्यास साहब, आप बताएं। बजाज जी, ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस जीत के नजदीक पहुंच करके मेडल लेने से चूक गई है। तो ये हर बार कहा जाता है कि हम अलर्ट हो गए हैं और हर बार वो फिसल जाते हैं। तो ये कह रहे हैं उनका अपना आंतरिक मामला है, मेरा उस पर कुछ कहना ठीक नहीं है, उनका अपना दल है। लेकिन हमें विश्वास है कि उनकी जो रणनीति रहती है चुनाव लड़ने के लिए, देखिए क्या होता है, चुनाव एक युद्ध है, युद्ध की कला होनी चाहिए। खाली तलवार चलाना ही ठीक नहीं है, बचना भी तो एक कला है। तो इनको खाली बोल देना, कर देना, लेकिन कुछ चुनाव के 2 दिन पहले 3 दिन पहले की कुछ रणनीतियां होती हैं, वो शायद कहीं न कहीं वो फेल हो जाते हैं उसमें। और हम देखेंगे, देखिए मैं मेरी दल की तरफ से नहीं, एक राजनीतिक ऑब्जर्वर होने के नाते भी मैंने देखा है कि फर्क कितना है। 0.59% वोट का फर्क है और 17 सीट का फर्क हो गया, 11 सीट का फर्क, 11 सीट का फर्क। तो ये तो रणनीति इनको बनानी चाहिए थी। जनता ने अपना काम किया, लेकिन इनको वोट अपने पाले में लेना आया नहीं, है ना? दुरुस्त बात, करेक्ट। तो लेस देन 1%, करेक्ट। ये बट लेस देन 1%, व्यास जी आपका लोकसभा में भी वही फेलियर था, लेस देन 1%, बट यू लॉस्ट। तो वहां से हम जगह नामबिहार जी, जो लोकसभा में हम पीछे हो गए 2 लाख वोट से पूरे महाराष्ट्र में, 0.39% वोट से महाराष्ट्र में, उससे हम जगह। इनको हरियाणा से जगना चाहिए। तो फिर लड़ाई में मजा जब आता है जब तुल्य बल पहलवान आमने सामने मिले। हमको तो अच्छा लग रहा है कि कोई मजबूत पहलवान से मुकाबला होने जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है। ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का नेशन नाउ के साथ जुड़ने के लिए, एंड आवर बेस्ट विशेस आर विद बोथ ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार फारूकी साहब, नमस्कार व्यास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। सो ऑफिशियली मिस्टर वानखेड़े हैज Not yet. as Vyas Sahab says, has not been offered a seat, nor has he asked for a seat so far. So who's So there is always something going on. That means that's right. If both the Sir, parties sir, say ऐसा no, होता है कि जब डिनायल आता है, Yes. इसका मतलब कुछ है। कुछ है। यार all the same, लेकिन जहाँ तक but a very strange situation, right? In case Mr. Wankhede actually gets a ticket from the Shinde Sena, on the Ajit Dada Pawar side, again there is Mr. Nawaz Malik. What's going on? Sir, if you see शिवराय कुलकर्णी और जो विनायक अंबेडकर, लक्ष्मण साहू जी, ये सब संगठन से जुड़े हुए, आरएसएस से जुड़े हुए, ये they reflect the thoughts that they portray are the real thoughts of the RSS, the That's right. the organization. Now, if these things happen, these are the first people who are going to be affected. Yes. Because the ideology, the core ideology that they believe in, That will be that compromised. is rattled. It stays rattled, and they don't want compromises for the sake of winning election. Most of them, because who have come to the show of yours, उनका clear cut है कि हमने सत्ता है नहीं है, हमने विचार पे हम एकदम निश्चित है. We are very determined about our thoughts and ideologies. So if Mr. Fadnavis goes ahead with these things, the most hurt people will be the people of the organization, like Shivrai Kulkarni, Vinayak Ambedkar, Lakshman Sahu, and many of them. अपने जितने भी लोग, Yes, ये इंक्लूड गणेश खानकर साहब, Yes, अपने yes, जितने भी लोग, बिल्कुल, जितने भी संघ से जुड़े हुए जितने सर, भी लोग हैं, हम तो जुड़े हुए नहीं उतने इनसे, मगर हमने भी जब मंच पे देखा कि जो महायुति के बैठक में एक जगह प्रसाद लाड है और एक जगह प्रवीण दरेकर है, तो what is the BJP? Are they the part of BJP? Where are the old people? Where are the bones, the strong bones of the foundations वाले कहाँ पर है? ये हर व्यक्ति की जो देख रहे हैं बीजेपी की, उनके फीलिंग है वो जी। So, और यानी it's very difficult. कब तक एक मोदी जी की तस्वीर दिखा के आप जीतते रहेंगे? Yes. सीधी सादी बात है। आखिरकार आपको भी तो जमीन पर कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। Exactly. और जहां संघ को ये रियलाइजेशन हो गया कि भाई संघ की जो बेसिक आइडियोलॉजी है, जो असली मूल आदर्श जो हैं संघ के, उनके साथ अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, तो मुझे लगता है कि आरएसएस के कार्यकर्ता जो हैं वो अपने आप पीछे हो जाएंगे। तो बीजेपी को फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जैसा कि उन्होंने लोकसभा में भुगता है। और अगर वो अपने आदर्शों के प्रति बिल्कुल लॉयल रहते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, फिर कोई चिंता नहीं है। लेकिन अभी लग नहीं रहा है वो, प्रदीप जी। आई डोंट गेट दैट फीलिंग from the BJP leadership at the moment. I don't get that feeling, very frankly speaking. And
you know, our whatever else you might say, that I have always admired the Sangh. I have always admired the way they work, etc. And I can feel the disturbance there. Sir, There is a disturbance. इन दोनों में से जो मंच पर थे, who is a crowd puller? None of them. What are their qualifications for being out there as as a Mayuti conference में? Is ऐसा कोई मास लीडर हो प्रदीप जी, जिनके crowd बगैर puller की तो बात बहुत ये बाद ये में दोनों में आती से है। कोई अपने बल पर तो जीत भी नहीं सकते। प्रदीप जी, क्राउड पुलर की तो बात बहुत बाद में Yes, आती yes. है। क्या दारेकर साहब या लाड साहब जो हैं, क्या वो संघ के आदर्शों के प्रति चलने वाले लोग हैं? मतलब सोचने वाली बात है ना सर। क्या वास्तविकता में वो हिंदुत्व के हिमायती हैं, या फिर आर दे जस्ट यू नो travelers of convenience? That today Mr. Devendra Fadnavis represents power, so therefore they are with him. I think they'll have to take a very close look at what they're doing if they really want to win in Maharashtra. You can't just depend only on the Eknath Shinde faction of the Mahayuti, because the Eknath Shinde faction is going to do very well. शिंदे साहब की जो पार्टी है वो बहुत अच्छा करने वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी दोनों को तय करना है कि उनको किस दिशा में चलना है। मेरा ऐसा विश्लेषण है। आप कुछ बोलें प्रदीप जी इसके बारे में? No, I am, because we are in touch with many of the BJP old timers who have seen Sangh rise from Jan Sangh से लेके अब तक जो संघर्ष करते रहे, और it's a sorry sight for them to see क्या हो रहा है. The people who have jumped in are the what you call showstoppers right now, seem to be showstoppers for the BJP when their contribution is nothing. Zero. And that is going down the rank and file, and it's become an eyesore for them seeing these people. That's right. And people are disturbed. They are disturbed. Well, So unless Prime Minister Modi pulls out some magic or rabbit out of the box, out of his hat, I don't not think gonna happen. any positive things going to happen. क्योंकि प्रदीप जी, महाराष्ट्र हरियाणा नहीं है। हरियाणा मतलब 15 हरियाणा चाहिए होंगे महाराष्ट्र बनाने के लिए। तो हरियाणा में ऑन अ वेरी माइक्रो स्केल आपने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ और करना पड़ेगा। You'll have to go back to your roots, and if you don't, you'll pay the price. That's what I think. Well, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। दोनों प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, अगर अभी तक नहीं किया है। प्लीज डू सब्सक्राइब टू चैनल, प्लीज डू सेंड इन योर कमेंट्स, एंड वील ऑफ कोर्स बी बैक विद यू टुमारो। तब तक के लिए आप सब लोगों को जय सिया राम, नमस्कार।